آج کے ہمارے موضوعات ہیں عمران خان بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ جیت کس کی ہوگی، باغ آزاد کشمیر وحشت کا راج وہاں پہ کیوں، مدنیات کے اوپر قبضہ جبکہ امریکہ کے لیے پاکستان اہم کیوں ہو گیا اور پاکستانی اور بھارتی کسان میں فرق کیسا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو تھے وہ کیسے بھٹک گئے۔ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ طبیعت کی ناسازی تھی، صحت اچھی نہیں تھی۔ اب بھی صحت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوچا کہ کافی وقت بیت چکا ہے، کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہاں ہوں، کیا ہے، چیزیں ہیں، تو ظاہر کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو آج سے جو ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا اس میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ صحت نے اگر اجازت دی تو آپ سے مخاطب ہوں گے۔ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوا پچھلے 2 ہفتوں میں، میں اس کے اوپر تو نہیں جاؤں گا۔ یقیناً آپ ان تمام چیزوں سے، تمام خبروں سے، تمام حالات سے جو ہے باخوبی باخبر ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر میں بات کروں گا، خطہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو علاقہ ہے باغ کا، وہاں پہ وحشت کا راج جو ہے وہ جاری ہے۔ وہاں پہ رینجرز کی ایک پوری یونٹ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے اس باغ کے علاقے کے اندر سے جو دہشت گردوں کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بڑا مفصل پروگرام کیا تھا۔ پھر یہ بڑا پرامن خطہ ہے اور گزشتہ دنوں جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، کراس فائرنگ ہوئی بٹوین پولیس اور دوسری جانب جو ہمارے ادارے ہیں قانون کے محافظ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ چند دہشت گرد ہیں اور وہ ہیں بھی نوجوان باغ کے علاقے میں، تو ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس بارود ہے، ان کے پاس بہت ہیوی چیزیں ہیں، اور ان سے کراس فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان جو تھا بائکیا چلاتا تھا، اس کی جان چلی گئی۔ اس کی جان تو چلی گئی، لیکن جو پولیس نے بھاری اسلحے کا استعمال کیا، جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ لڑے، ایک بھی دہشت گرد نہ مرا، ایک بھی دہشت گرد پکڑا نہ گیا۔ جو فورسز تھیں ان کا بھی کوئی شخص مر نہیں سکا، وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، لیکن ان دہشت گردوں کے نام کے اوپر ایک عام شہری جو تھا، جو غریب تھا، جو مزدور تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ کوئی پتہ نہیں کہ اس کی جو فیملی ہے وہ کیسے جیے گی، کیسے گزر بسر ہوگی۔ مگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ جس کی 50 لاکھ آبادی ہے، اس میں سے 15 سے 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں ہیں، بالخصوص یورپ کے اندر ہیں، برطانیہ کے اندر ہیں۔ مالی اعتبار سے یہ لوگ بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ اچھے ہیں۔ یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے، میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک جو پرندہ تھا وہ بھی نہیں مرا، ایک شخص کی جان نہیں گئی۔ یہاں کے لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاقی رواداری ہے، وہ بڑے مہمان نواز ہیں، وہ بڑے پرامن ہیں، ملک سے، قوم سے، مذہب سے، اپنوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی دہشت گردی ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ یہ کشمیر النسل ہی یہاں کے پیدا ہونے والے یہ چند نوجوان ہیں جن سے اپنی ہی ریاست کو، اپنی خطے کو، اپنی فوج کو، اپنی فورسز کو خطرہ ہے، جو کہ یہ بات نہ مجھے ہضم ہو رہی ہے نہ کسی اور کو ہضم ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ اور وجوہات ہیں کہ اس طرح کی ہواؤں کو کیوں جو ہے وہ ان کو وجہ بنایا جاتا ہے، کیوں ایسی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ سندھ سے لے کے تاؤ بڑھ تک، کشمیر تک، گلگت بلتستان، KPK، افغانستان تک بارڈرز لگتے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ جب بھی جھڑپیں ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان اور بھارت مل گئے صرف جو ہے وہ انتخاب آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں کا لائن آف کنٹرول کا کیوں کرتے ہیں؟ یہیں پہ فائرنگ ہوتی ہے، یہیں پہ یہ کشمیری مارے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ملزم زرنوش کا ساتھی تھا، اسے اسلحہ سپلائی کہتے ہیں کیا گیا۔ اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور SSP راولاکوٹ اور SSP باغ کی زیر نگرانی ایک ٹیم پتھراٹا موڑ کے مقام پر مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے پہنچی۔ ایک لمبی داستان جو ہے وہ اس کے اندر لکھی گئی ہے، لیکن میں اس سارے معاملے کو ایک جملے کے اندر سمیٹنے کی کوشش ایسے کروں گا۔ یہ زرنوش ہو، 3 لوگ ہوں یا 300 ہوں یا 30 لوگ ہوں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک پولیس چوکی یا ایک تھانہ جو ہوتا ہے نا، اسی کے عملے کو لے لیں۔ یہ ہماری فورسز اتنی باصلاحیت، عقل مند، دلیر، باجرت ہیں کہ ان تمام لوگوں کو کچل سکتی ہیں۔ وہاں پہ کسی فوج کی، کسی رینجر کی، کسی فورس کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، مگر
तमाम फोर्सेस, हालात, असलहा, ताकत, पैसा होने के बावजूद अगर इन 3 दहशतगर्दों से आप लोग नहीं लड़ पा रहे और एक आम शहरी की जान चली गई है, तो आपको अपने हालात के ऊपर गौर करना पड़ेगा और लोग इसको महज़ एक ड्रामा तस्वर करेंगे। नहीं मालूम कि आज़ाद कश्मीर के पुरअमन खित्ते के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्यों पनप रही हैं और इन्हें क्यों हवा दी जा रही है। आप इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्द हैं? क्या ये दहशतगर्द इतने मज़बूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि हमारी फ़ोर्सेस उनसे लड़ के भी उन्हें जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम है? तो अपना जो इज़हार ख़्याल है वो ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट और जीत किसकी होगी, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये तो एक लंबी जंग है, कई सालों के ऊपर मोहित है। ताहम हम देख रहे हैं कि कैसे पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के ऊपर गमज़न है। इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो ताहाल जारी है, मगर ये लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके और आइंदा भी लगता है कि इनको कामयाबी होना दिखाई नहीं दे रही। जिस इमरान खान को आपने जेल में डाला था, अब उसे जेल से के अंदर रखें तो तब भी मसला है, जेल से बाहर निकालें तो तब भी मसला है। तो लिहाजा अब ये कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को इतना कमज़ोर किया जाए, मजबूर और लाचार बना दिया जाए, जिसके तहत ये ख़ुद से ही कोई डील करने के मुतरादिफ जो है वो उस नहज पे आ जाएं, जिससे हालात बेहतर हो जाएं। मगर मैं यहाँ ये कहना ज़रूर चाहूँगा, कोई भी हो, इमरान खान पहले से बहुत मजबूत हो चुके हैं। आप लोगों ने जो है वो नफ़रत कमाई है। पहले भी लोग आपको थोड़ा बुरा समझते थे, लेकिन अब लोगों के ज़हनों के ऊपर, दिलों के ऊपर ऐसी मोहर लग चुकी है कि वहाँ पे 64% जो पाकिस्तान की यूथ है वो आपको कबूल नहीं कर रही। उसकी वजह आपके करतूत हैं, आपकी चीज़ें हैं। आपने आइन के ऊपर अमल नहीं किया, आपने साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, अवाम ने वोट दिया, उनकी अमानत चोरी कर लिया आपने। जिसे इक़्तिदार में होना चाहिए था उसे जेल के अंदर तुन दिया। जिन लोगों को इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए था वो आज बरसे इक़्तिदार हैं। जब तक आप जिसकी लाठी उसकी भैंस के मस्ताक इस तरह की ज़बरदस्ती चीज़ें करते रहेंगे, कोई इदारा, कोई मुल्क, कोई कौम, कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर, कोई आर्मी चीफ जो है वो इज़्ज़त नहीं पा सकेगा। चूँकि ये जदीद दौर है और जदीद दौर के अंदर किसी डिग्री की, किसी फ़लसफ़े की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती समझने के लिए, ना ही कोई लेक्चर चाहिए। ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप जब चाहें अपनी शक्ल जो है वो देख सकते हैं और उसको अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक आप नंगे गंजे होके सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। सिर्फ बात इतनी है कि आप लोगों को शर्म और हया नहीं आती, आप लोगों को गैरत नहीं आती, और जिस वजह से मुल्क का किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, रोज़गार नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। यहीं पे मैं भारत और पाकिस्तान के किसान की भी बात करूंगा और फिर मदनियात के ऊपर आऊँगा, चूँकि ये बात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, भारत, तमाम चीज़ों के साथ जो है वो जुड़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो बटे कैसे गए हैं, आप देखेंगे शोएब शाहीन बामुकाबला शेर अफजल मरवत, फिर देखिए शेर अफजल मरवत बामुकाबला सुलेमान अकरम राजा, फिर सुलेमान अकरम राजा साहब का मुकाबला हो रहा है बैरिस्टर गौर के साथ, फिर सुलेमान अकरम का मुकाबला हो रहा है फवाद चौधरी के साथ, और वकला बामुकाबला सियासतदान, जो पुराने बामुकाबला नए। तो इस तरह की जो बहसें हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको देखने और सुनने को मिलती हैं, और लड़ाइयाँ झगड़े आपस की जो रंजिश है अरूज पर है और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त जो है वो ज़ीरो है। असल मकसद खान की रिहाई था, उसको ये फरामोश कर चुके हैं। उसके ऊपर उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि खान साहब जाएं भाड़ में, हम जो हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके तहत हर एक कोई से ये साबित करना चाहता है कि मैं मजबूत हूँ, मैं डटा हूँ, मैं इमरान खान से मुखलस हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का टॉर्च नहीं हूँ। तो इस सारे अमल के अंदर हर कोई जो है वो अपनी हैसियत को मेंटेन रखना चाहता है। ताहम इस मामले के अंदर शेर अफजल मरवत हूँ या बाकी लोग हूँ, वो सारे के सारे बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अली मीन गंडापुर भी, इनके ऊपर इंडिविजुअली बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। पाकिस्तान बामुकाबला भारत और इसका सत्यानाश कैसे हुआ, और किसान के हवाले से मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा। भारतीय किसान को फ़ी एकड़ गंदम पर 44,000 का मुनाफा हुआ, पाकिस्तानी किसान को 36,000 नुकसान। यानी कि भारतीय किसान जो है उसे
44,000 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है फ़ी एकड़ गंदम के ऊपर। इसके बरक्स हमें कोई 4,000 रुपये या 400 रुपये या 40 या 4 रुपये भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बरक्स क्या हुआ कि 36,000 का फ़ी एकड़ गंदम के ऊपर पाकिस्तानी किसान को नुकसान हुआ है। मेहनत एक जैसी, मौसम और ज़मीन एक जैसे, तो फिर हमारा किसान पीछे क्यों? ये सवाल है बड़ा अहम। ये सिर्फ आदात नहीं, हमारे किसान की हालत इज़ार का सबूत हैं। लोग जो हैं वो इसके ऊपर तहकीक करें, गौर करें कि पाकिस्तान में इस साल 16.5 लाख एकड़ कम रकबे पर गंदम काश्त हुई है। सबसे ज़्यादा कमी, सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले सूबों पंजाब और सिंध में हुई है। ये सूरत हाल खुराक की कीमतों में इजाफे, दरमदात पर इन्हिसार और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो मैंने किताबों में पढ़ा था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान की मेशत का बड़ा इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर होता है, लेकिन उस मुल्क के किसान की हालत इज़ार ये है कि उसे मुनाफा तो दूर की बात, उसे फ़ी के एकड़ गंदम जहाँ से वो पैदा की जाती है ज़मीन से, उसके ऊपर 36,000 रुपये का नुकसान है। आप लें यूक्रेन से गंदम, रशिया से ले लें, उसमें कीड़े पड़े हों, अंदर रखें, और अपने किसानों को अगर आप तरजीह नहीं देंगे जो मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो फिर इस तरह के हालात जो हैं उनको देखना आपको पड़ेगा। बड़ी अहम चीज़ें हैं, मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगा भी, आपके सामने रखूंगा। आप देखें कि अमेरिका के लिए जो है वो पाकिस्तान अहम क्यों है और मदनियात के हवाले से क्या कहानी है। इस वक्त KPK जो है वो तवज्जो का मरकज़ है, और वहाँ अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि जो KPK के वसाइल हैं, जो एक बिल आया है उसको असम्बली में पेश करूँ, उसे पास करवाऊँ, उसे कबूल कर लिया जाए, और जो सूबाई इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली थी, उस सूबाई खुद मुख्तारी के तहत इनको जो बजट मिलता था, इनके जो वसाइल थे, उनका हक, उन वसाइल के ऊपर जो हक था मकामी अवाम का था, मकामी हुकूमत का था, उनको जैसे कैसे है वो यूटिलाइज़ करे। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस बिल को पास करके सूबाई खुद मुख्तारी को तोड़ के मदनियात का जो मामला है, मिनरल्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर साया फिर से दे दिए जाएँ, उसके पास कंट्रोल चला जाए, और फिर आर्मी चीफ हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या अमेरिका हो, वो जिस मर्ज़ी को बेचना चाहें उन्हें उसको बेचने में आर ना हो। ठीक है, मुल्क को फ़ायदा होगा, हम इन मिनरल्स को रख के अचार डालेंगे। अगर मुल्क मुश्किल में है तो इन मिनरल्स का इस्तेमाल में लाना चाहिए, लेकिन उसका दस्तूर और तरीक़ाकार जो है वो क्या होना चाहिए। इसमें हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका का एक वफ़द जो था वो पाकिस्तान में आया, उसने मीटिंग की, और पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की मैं बात करूँ तो रूबी के पहाड़ हैं, दुनिया में ऐसा हीरा जो है वो कहीं नहीं पाया जाता, संदल के दरख्त हैं। KPK के अंदर लिथियम से लेके फिर वहाँ पेट्रोल है, गैस है, कापर है, यानी कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, मदनियात हैं जिन्हें पाकिस्तान जो है वो बैरूनी दुनिया यानी कि बिलखुसूस अमेरिका को दे के अपने हालात जो हैं वो बेहतर बना सकता है। मगर सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार जो है वो इस तरह से क्यों है, और अमेरिका की नज़र जो है वो इन मदनियात के ऊपर क्यों है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जो एटमी प्लांट है और बाकी चीज़ें हैं वो गैर महफूज हाथों में, इसी तरह से वो समझ रहे हैं कि मदनियात जो हैं वो भी गैर महफूज हाथों के अंदर शामिल हैं। तो अमेरिका को तो पैसा चाहिए, उन्हें तो दौलत चाहिए। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद चीन के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। इस वक्त चीन और अमेरिका जो है उनका आपस में मुकाबला चल रहा है। इसका असर सऊदी अरेबिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर पड़ा है, पाकिस्तान यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हैं। तो देखना ये है कि अमेरिका की नज़रें जो पाकिस्तान के ऊपर हैं, और अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान है वो अहम हो चुका है। तो क्या KPK की हुकूमत जो है वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर ऐसा करेगी? वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे अगर बात करें, KPK के या आवाम से बात करें, तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और वो लोग इमरान खान साहब से मिलेंगे, वो लोग इजाज़त लेंगे। हो सकता है इमरान खान उनको ये कहें कि KPK की असम्बली को मदनियात मिनरल्स के हवाले से इख्तियारात वफाकी हुकूमत को नहीं देने चाहिए, लेकिन जो मिलने वाला वफ़द होगा वो लोग होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अलाकार होंगे। बाहर आके कुछ और कहेंगे, अंदर खान साहब कुछ और बताएंगे। तो इससे बिटवीन PTI के कारकुन और इमरान खान के दरमियान जो है एक दूरी पैदा की जा सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। तो इस नुक्ते को अगर आप देखें तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए अहम हो गया। और एक आला अमरीकी अहदेदार ने बुध के रोज़ कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मदनियात के मतनू और काबिल एतमाद ज़राए को महफूज बनाने की हिकमत अमली की स्ट्रेटजिक अहमियत पर जोर दिया है, और कहा है कि पाकिस्तान का गैर दरियाफ्त शुदा मदनी ज़ख़ीरा
دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر اسے ذمہ داری اور شفافیت کے ساتھ ترقی دی جائے۔ تو امریکی سفارتخانے کی اسلام آباد سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ایرک میر، جو کہ امریکی وزارت خارجہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا امور کے بیورو کے سینئر عہدیدار ہیں، نے 8 سے 9 اپریل تک پاکستان کا دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ان معدنیات کو قابل اعتماد ذرائع جو ہیں وہ ان کے ذریعے محفوظ بنایا جائے۔ اس سے پاکستان اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے یہ فہرست جاری کی ہے، جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مدنی وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، انہیں استعمال میں لایا جائے۔ اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں باضابطہ ڈیلیگیشن جو ہیں وہ مل چکے ہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے کہ کیا KPK کی اسمبلی ان چیزوں کا اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کو دے دے گی، جس کے نتیجے میں اس کے بعد بٹوین پاکستان اور امریکہ جو ہیں ایک نیا معاہدہ پائے گا، اور جس کے تحت یہ جو منرلز ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا نقطہ نظر کیا ہوگا۔ تاہم ٹیرف کے بڑھانے سے امریکہ کی جانب سے چین، بھارت، دیگر ممالک جہاں مشکل میں ہیں، وہیں پہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے مدنیات کے حوالے سے۔ تو اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کوئی کانگریسی بل پیش ہوگا، عمران خان کو جیل سے نکالا جائے گا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، فلاں چیز ہو جائے گی۔ تو تبدیلیاں ہو چکی ہیں بے شمار چیزوں کے اندر۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔